friends, let me start the session with very simple background and making you understand that COVID में क्या हुआ था ना. I hope Hindi and English both are mixed to is okay to you. Everyone, is Hindi and English okay to all of you? You can just put on the chat box. Hindi English okay to all of you? Yes. Thank you Ayushi for replying. Thank you Mohit. So now let's understand and break up this idea of finance. If we go back into the year 1991, there was only one mutual fund company and there was only one insurance company selling very few products. There were FDs, post office, and there were a lot of government products which were there. And obviously people don't have that idea and knowledge of finance. But in the year 2022, if you see, today there are more than 35 insurance companies and more than 40 mutual fund companies and more than so many banks, 100 of banks selling a lot of funds in India, right? So people are not only confused, but they are also worried that products in which we are going to deal, whether it is a right product or wrong product. Plus, I don't know whether my father must have heard about Bitcoins. I don't know whether my father must have heard about NFT, which are the trending products in India right now. So what has happened with finances, it has changed dynamically. And that's why it's very important for a normal and common man to understand that finance, to understand the finance is the first phase, while earning of the finance is the another phase. So let's start with the very simple program called Investor Awareness Program. And who is the investor? Anybody who is investing the money, anybody who is thinking to invest the money, anybody and everybody who has money and definitely is going to, use that money for the future purpose. That is investor awareness. And that's why we say that you need to take control of your finance in your hand. Obviously, if you're not taking that in your hand, you're going to suffer. Now, the first thing what we say is you should know yourself first. I believe that is a very beautiful line. Why? Because if you don't know yourself, your family members and your community and family, definitely you're not going to make any money. But let me ask you one simple question and let me see how many of you can answer this. My first question to all of you is, there is one word called money. And money speaks certain language. What language does money speak? Anybody can tell me? What language does money speak? Anybody, come on. Anybody can tell me? Anybody can answer what language does money speaks? So people say money speaks power, money speaks paisa, money speaks status, money speaks so and so. What language does money speaks? Is absolutely right. Respect. So these are the common answers which we find very good. Alert. Very good. Mohit. Status. Power. Very good. Economics. Very good. Now, when my father told me that पैसा बोलता है, तो मुझे लगता था खाली गाना है, बट पैसा सच में बोलता है. और पैसा जो लैंग्वेज बोलता है, जिस इंसान ने समझ लिया ना, तो पर्सन हु अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ना, he is going to rule the money. And if the person who don't understand this, the money is going to rule him. What language does money speaks? Let's understand this. Money speaks only one language. You know what? If you save me today, I will save you tomorrow. How many of you agree with me on this? Hit the chat box. What language does money speaks? If you save me today, I will save you tomorrow. Come on. How many of you agree with me on this? और मजे की बात पता है क्या है? यहाँ पर सेविंग के दो मतलब है. यहाँ पर सेविंग के दो मतलब है. पता है क्या मतलब है? कि भाई तुम मुझे तुम्हारे सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो. मजे की बात, ठीक है? ये है मतलब सेविंग के, कि when your time is really good, you try to save me. And when your time is bad, I will save you. But in India, what we generally do, जब हमारा टाइम अच्छा होता है तो हम पैसे को उड़ा देते हैं, स्पेंड करते हैं. और जब हमारा टाइम खराब होता है तब हम पैसा लोगों से मांगते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला सबसे रूल था कि प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोशन दैट कि वी नीड टू, what we need to do is very simple thing. What is the simple thing we need to do? We need to understand that we need to save the money for the future purpose, right? The question comes, why we need to save the money? बहुत simple है. Because we need to have a certain transition. What is the transition? Let's understand. सबसे पहले आपकी आती है इनकम ना. आज से एक बात समझ लो, आज से अभी से जब भी आप मुझे बोलो या किधर भी बोलो, खुद को बोलो कि मुझे इनकम कमानी है, सैलरी नहीं कमानी. सैलरी का एक ही सोर्स होता है, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप होता है आपको इनकम कहां से जनरेट होगा. एवरी इंडिविजुअल सिटिंग इन दिस रूम,
should always think from the one point of line in the next 5 years कि मेरी आने वाले 5 साल में मेरी इनकम कितनी होगी, कैसे होगी, कहाँ से होगी, किन सोर्सेज से इनकम मेरी जनरेट होगी। मेरा टारगेटेड क्या रहेगा? आपकी डिग्री आपकी इनकम डिसाइड नहीं करेगी। आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका बेसिकली पोटेंशियल डिसाइड करेगा आपकी इनकम कितनी होगी। एक बंदे की 2 इनकम हो सकती है, एक बंदे की 4 इनकम हो सकती है, एक बंदे की 10 हो सकती है, एक बंदे की 1 ही हो सकती है। बट वो आपके ऊपर है कि अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करके आपकी इनकम को डबल मल्टीप्लाई करते हो। इनकम के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस में याद रखना यू आर बीइंग ट्रैप्ड। एक्सपेंस के बाद आता है सेविंग और फिर आता है इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मली साइकिल होती है उनके लिए जो 30 इयर्स के ऊपर होते हैं, यानी मतलब क्या है, उनको उन्होंने कभी सेविंग की नहीं है या उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप हो तो आपके लिए ये है, इनकम होगा पहले, इनकम के बाद आएगी पहले सेविंग आपकी, फिर आएगा बचेगा तो मैं एक्सपेंस करूंगा और फिर मैं वहां से इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर आपने ये फंडा फॉलो किया, इनकम के बाद सेविंग का फंडा फॉलो किया, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर आप मैरिड नहीं हो, 30 इयर्स के नीचे हो, तो आप मैक्सिमम पैसा सेव कर सकते हो। तो सेविंग कितना हो सकता है? अगर 100 रुपीज कमा रहे हो बाई चांस, 100 में से यू कैन सेव मिनिमम एटलीस्ट 60 to 80, 70 रुपीज आप सेव कर सकते हो। बट अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो ऑटोमेटिकली 60 to 70 आपका खर्च हो जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट you follow the right cycle in the right direction. Now, I want to guide you on certain front, which is very important. When you go ahead and understand, this is a very important part. See, whenever you generate certain income, there are expenses. Now, what is in your control is discretionary expense. What is not under your control is essential expense. This is under your control. Now, let me give you an example. You want to buy a phone, so that is essential expense. But you want to buy iPhone, that is discretionary expense. You want to buy a car, that can be essential expense, but you want to buy Mercedes, that is discretionary expenses. So discretionary expenses is like on your behalf, that you are trying to tell me that if I don't buy, my status will affect, my lifestyle will get affected. So you need to come with the idea that whatever money I am spending, can I reduce the cost? So you can only reduce your discretionary expenses. So my dear friend, this is again a very important step of financial literacy. You need to understand that whatever income you generate, it comprises of these 2 expenses, then only you'll be able to manage your savings. If you reduce this to a greater extent, then your saving will increase over a period of time. Okay? Perfect hai? Everybody, come on, hit the chat box if you agree with me. Perfect hai? Everybody, yes or no? Come on, आवाज नहीं आ रही है, यानी ये नहीं हो रहा है, मतलब I'm sorry but I'm unable to take this messages. Come on. Do you agree on this? Bolo? Yes? Great. Now my question to all of you is, how many of you want to learn the right financial planning process? How many of you want to learn the right financial planning process? Come on. How many of you want to learn the right financial process? Just put on the chat box me. That's it. Only put me. I want to learn. Me. How many of you want to learn the right financial planning process? You can put on the chat box by saying me. Now. Very good. Thank you. Now, let me guide you with the first aspect of financial planning. Rules. Thumb rule. Before you enter into this. First. पहला रूल ये है, don't become rich. Don't become rich. Or let me give you another example. It's worth this. So if somebody over here comes and tell me I want to become rich, I will say don't become rich, but create wealth for yourself. So next time, whenever you say I want to become rich, don't use the word. Instead, use I want to create wealth for myself. That's the first funda. Because when you become rich, you become poor also. So when you create wealth for yourself and for next generation also. So creating wealth is the first motto, not becoming a rich. And number one. Second, if you really want to create wealth, you have to be selfish in nature. I'm again repeating. You have to be very selfish in nature. You have to save money from your friends, relatives, everybody who is coming and asking for the money, who is coming and asking for the expenses. Because if you're not able to do so, somewhere or the other, you will lose the money and lose the relationship also. Second, be selfish. Third part, very important, very important. Never ever try to say yes to everybody. Try to learn to say no. The person in this room is able to say no, no, I'll not do this, I'll not do that, I'll not do this. मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता. Very good. आप किसी भी और का काम आपको करने की जरूरत नहीं है.
किसी और का टारगेट पूरा करने की जरूरत नहीं है, किसी और के लिए पैसे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको नो बोलना आ गया। इंसान वही पैसा बनाता है जो नो बोलना सीख जाता है। अगर जो नो बोलना नहीं सीखता है वो पैसा कभी नहीं बना। एक बात याद रखना, जिधर से पैसा आए उसके लिए यस, जिधर से पैसा जाए उसके लिए हमेशा नो। पिक्चर देखने जानी है, फ्रेंड ने बोला पिक्चर देखने जानी है, अगर जेब में पैसा नहीं है, नो मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास नहीं है पैसा। कोई बोलेगा मैं तेरा भर देता हूं, तू बाद में दे देना, वो चीज चालू होती है लाइबिलिटी क्रिएशन की। दैट इज द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग लाइबिलिटी के बाद में देना है, बाद में चुकाना है, देना है, ये सब में लाइफ आपकी पूरी खराब हो जाएगी। जब तक आपकी कोई कॉन्क्रीट इनकम नहीं होती है वैसे आपकी कॉन्क्रीट एक्सपेंस भी नहीं होने चाहिए। How many of you agree with me on this? These are the first three steps which I believe which are very important. And the fourth one is always remember you have to be Rahul Dravid. Rahul Dravid is meant for what? Consistency. Consistency. So you should have characteristic of Rahul Dravid, Dhoni, correct cricketer, and Virat Kohli. Now and last one is also Tendulkar also. These are the four characteristics which you should possess in you as a person. First, Rahul Dravid, you should be always consistent in your investments. You should not run away with everything. Consistent होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज डाला पैसा कल निकाल लिया, परसों डाला, ऐसा नहीं चलता। You have to be very sure that this is what I want to do. Dhoni, whatever you do with the strategizing and with the right mindset. Virat Kohli, become aggressive when is required. Unnecessary, don't become this. And if you want to become Tendulkar, if you want to really achieve and get a tag of investor, then you need to be a really, really good in this. So all the four things you should need to enter into the one shot. Clear? Now I'm going to take you to the financial planning process. This is a very, very important one. I bet on it. This is something which you are learning new for the first time and you will really enjoy it. Let's start. जब भी आपके हाथ में पैसा हो, whenever you have money in your hand, the first target should not be ever कि I want to invest the money. Where should I invest? How much money I will make? How much loss I will make? You know what the return I am going to get. This is all. This question you should not ask. The first question what you need to ask is very simple. कि मुझे जो पैसा मिला है ये मुझे पैसा कितने टाइम तक चाहिए, वापस चाहिए. I want this money back after how much time? So if you require money less than money, if you require your money back in less than 1 year, it is called as short-term goal. If you require money between 1 to 5 years, it is called as mid-term goal. And if you require money more than 5 years, it is called as long-term goal. Short-term goal, mid-term goal, and long-term goal. So let's take an example and let's see how many of you have understood this example. Okay, let's play one game and understand. First, मुझे पैसा, I want money for my sister's marriage after 7 years. I'm repeating. I want money after 7 years for my sister's marriage. What kind of goal it is? LT, MT, ST. Long term, mid term, short term. Come on. Long term, mid term, short term. Let's see the answers. I want money after 7 years for my sister's marriage. LT, Ali Raza, absolutely fantastic. Long term is the right answer because मुझे 7 साल के बाद पैसा चाहिए. Let's go to the second question. I require money for my brother education after 2 years. I require money for my brother education after 2 years. What kind of goal it is? LT, MT, ST. LT, MT, ST. I require. Ali Raza, absolutely fantastic. MT is the right answer. Medium term is a mid term is the right answer. Third. Come on, guys, everybody. Let's see the answers. I require money for my operation after 2 months. What kind of goal it is? I require money for my operation after 2 months. What kind of goal it is? Short term goal is the right answer. ST. So short term is an absolutely fantastic answer. Now, my dear friends, very good, Elliot. Very good, ST. Now, what you have learned in this process, let's understand. See, whenever you study finance, in the case of finance, always remember out of 100% finance, 80% is managing emotions. It's managing emotions. Okay? And 20% is returns. Return of calculations. Return and calculations. So if you come and tell me, sir, I want to understand finance, so I will say, if you are able to manage emotion, you are able to create wealth. The people who are not able to create wealth are the people who are very, very, very ruthless in their emotions. They don't know how to manage it. People manage their emotions. Do you agree with me?
कम ऑन गाइस, हिट द चैट बॉक्स, डू यू एग्री विद मी? जो इमोशनल होगा ना, हमेशा याद रखना, जितना बंदा इमोशनल होगा ना उसके पास कम पैसा होगा, जितना बंदा इमोशनलेस होगा ना उसके पास देखना ज्यादा पैसा होगा, और ज्यादा पैसा के बाद आप इमोशन एकदम अलग तरीके से बिहेव करते हो, आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है सामने वाले के बाद। तो इसलिए मैं आपको सबको बोलूंगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। जब भी आपको पैसे, देखो जब भी पैसे की बात आती है ना, आपको इमोशन को साइड में रख के प्रैक्टिकलिटी पे जाना चाहिए। इंडिया में बहुत जन इमोशंस है, और इमोशन की वजह से पब्लिक कभी वेल्थ नहीं बना पाती है। दूसरी चीज, जब आपका लेस देन 1 ईयर का गोल है, आपको मालूम है तो आप पैसा कहाँ रखोगे, वेर यू विल डू दी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करोगे, या तो आप कैश में रखोगे, कैश में रखोगे, या तो फिर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रखोगे, या फिर आप लिक्विड फंड और म्यूचुअल फंड पे रखोगे। 3 जगह पे रखोगे, कैश में, बैंक सेविंग में, या लिक्विड फंड और म्यूचुअल फंड में। 3 ही ऑप्शन है। कोई आपको कितना भी आके बोले कि पैसा तू यहाँ डाल, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उसको हाथ जोड़ के बोलने का, मैं नहीं डालूंगा पैसा, क्योंकि मुझे मालूम है 1 साल के अंदर पहले तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। दूसरी बात, आप कोई भी एसेट में पैसा डालो 1 साल में डबल ट्रिपल होगा नहीं। अगर आपका नसीब रहेगा और बढ़ गया तो उसको मैं जैकपॉट बोलूंगा, या उसको मैं गैम्बलिंग बोलूंगा, क्योंकि कोई भी अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट आपको इतना जल्दी रिटर्न अच्छा नहीं देगा, याद रखना। अब आते हैं 1 to 5 years में। अभी जब आपका गोल 1 to 5 years है, इधर आपका एक्चुअल गोल होता है कि मुझे ना फिक्स इनकम चाहिए या फिक्स रिटर्न चाहिए मुझे, मेरे पूरे प्रिंसिपल। तो आप क्या करते हो, जब भी आपको 1 या 5 साल के बीच में पैसा निकालना है, आप एफडी में पैसा डाल दो, आप बॉन्ड में पैसा डालते हो, आप डिबेंचर में डाल दो। समझने के लिए बहुत सिंपल वे से समझ सकता हूँ। बॉन्ड और डिबेंचर क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो, या आप किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा देते हो, उनको बोलते हो तुमको प्रॉफिट हो लॉस हो मेरा कोई कंसर्न नहीं है, अगर मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिया, मुझे साल का 8 हजार रुपये चाहिए, उस पर भी आज 8%, 7%, 6%। पहले रेट बहुत ज्यादा थे, 12-12% तक मिलता था, अभी बहुत कम हो गया। तो इसीलिए एफडी, बॉन्ड और डिबेंचर आपको फिक्स रिटर्न देता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वो भी आपको फिक्स रिटर्न देती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी फिक्स रिटर्न देती है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट हम कभी यूज करते हैं 2 तरीके से। एक, अभी आपको एकदम मार्केट में रिस्क नहीं लेना है तभी, या मार्केट एकदम फॉल हो रहा है तभी, या दूसरा आप तभी ले सकते हो जब भी आपका रिटायरमेंट का प्रोसेस शुरू है। रिटायरमेंट का मतलब होता है आपको पैसे की जरूरत है, कंटिन्यू जरूरत है, तो इसलिए आप ऐसी जगह पे कहीं पैसा नहीं डाल सकते हो जो आपको रिटर्न नहीं देगा। तो आपको एक फिक्स इनकम चाहिए रहती है अपना घर चलाने के लिए, तभी आप ये रिटायरमेंट बेनिफिट ले सकते हो। मोर देन 5 years का गेम किधर होता है, अभी मोर देन 5 years का मतलब है लॉन्ग टर्म गोल, बट लॉन्ग टर्म के साथ क्या आएगा, हाई रिस्क। रिस्क होता है, आप रिस्क लेने को रेडी होते हो क्योंकि आपको ग्रोथ मिलती है, और ग्रोथ कैसे मिलती है, आप प्रॉफिट का हिस्सा बनते हो। यानी आपको फिक्स रिटर्न नहीं आता है, आपको ग्रोथ मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। अभी आप पैसा कहाँ कहाँ डाल सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप इनमें पैसा डायरेक्ट शेयर्स में डाल सकते हो, डायरेक्ट इक्विटी खरीद सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है, पेशेंस है, एक्सपीरियंस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है, पेशेंस है, एक्सपीरियंस है, और यू नो हाउ टू प्ले विद द मार्केट, देन यू बाय डायरेक्ट शेयर्स। अगर नहीं है, यू कैन यूज द रूट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। अभी आपका ध्यान क्या रहेगा कि सर आपने कहा था कि लेस देन 1 ईयर में लिक्विड म्यूचुअल फंड, 1 to 5 years में यहाँ पर एक और एक है डेट म्यूचुअल फंड, और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो क्या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नहीं है? तो बेसिकली गाइस, म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जो मुझे तीनों तरीके से लेके जाता है। तो अगर अगर सपोज एग्जांपल मुझे एफडी, बॉन्ड या डिबेंचर में पैसा डालना है, और मुझे मालूम ही नहीं है कौन सा डिबेंचर अच्छा है, कौन सा बॉन्ड अच्छा है, कौन सा एफडी अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा जाके म्यूचुअल फंड के पास देता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपने फंड मैनेजर को पैसा देता है, और वो फंड मैनेजर जो इसको जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा समझदार है, हम मुझसे ज्यादा टाइम मार्केट में रहता है, वो जाके बाय आउट करता है। तो मोर देन 5 years में भी ऐसे ही होता है। तो म्यूचुअल फंड में आपके पास 3 तरीके के म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको दिखे। अभी आता है चौथा टाइप, अगर आपके सारे गोल्स पूरे हुए, आपको कोई टेंशन नहीं है, यू आर ओके विद इट, फिर आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम कहते हैं वन ऑफ द टाइप इज बिटकॉइन, डॉज कॉइन, वो सब, एनएफटीज, डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग, जैसे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो मेरे माय डियर फ्रेंड, जितने भी जन यहाँ पर बैठे, एक बात समझ लो, आप बोलोगे सर मैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालूंगा ग्रो कर गया, तो अभी ग्रो कर भी जाएगा और जीरो पे भी लाएगा। अगर कोई भी चीज बैकड अप बाय सिक्योरिटी नहीं है, आपको मालूम ही नहीं होता सरकार किधर है, तो आप वो किधर भी आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको एवरीबडी? समझ में आ गया एवरीबडी? परफेक्ट याद है? कम ऑन गाइस, हिट द चैट बॉक्स, यू अंडरस्टूड दिस लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल? यस,
परफेक्ट है यहाँ तक? कौन गाइस हिट द चैट बॉक्स। तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, इसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल गोल प्लानिंग प्रोसेस। इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल गोल प्लानिंग प्रोसेस। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज लेट्स प्ले वन गेम। यू विल टेल मी ग्रीन or red. I'm going to do that. Some decision I'm going to do. I'm going to tell me green or red. Let's go with it. First, मेरी सिस्टर की शादी आज से 7 साल के बाद, 7 years के बाद, किसी ने मुझे बोला कि मैं पैसा उठा के एफडी में डाल दूं। मेरे को चाहिए पैसा 7 साल के बाद, 7 years के बाद। तो ग्रीन या रेड? व्हाट इज योर डिसीजन? इफ आई एम पुटिंग द मनी इन एफडी, ग्रीन या रेड? Ali Raza, absolutely fantastic. Red is the right answer. Anybody want to try? Red is the right answer. Very good, Mohit. Why red? Let's understand this. मुझे पैसा 7 साल के बाद चाहिए, सारे इमोशंस पीछे हो गए, बहन की शादी, भाई का कुछ भी, सब कुछ शादी हो, सब साइड में हो गया। मेरे को पता चला पैसा 7 साल के बाद मैं एफडी में नहीं डाल सकता बॉस। एफडी में इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि कोई इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। दूसरा जो भी रिटर्न आएगा वो टैक्सेबल आएगा, तो मुझे एक्चुअली इन्फ्लेशन के नीचे रिटर्न मिलेगा। तो दैट इज नो यूज फॉर मी। लेट्स गो विद द सेकंड एग्जांपल। मुझे पैसा मेरे भाई की एजुकेशन के लिए 2 साल के बाद चाहिए। किसी ने मुझे बोला कि मैं पैसा उठा के शेयर मार्केट में डाल दूं, और मैंने पैसा उठा के बिटकॉइन में डाल दिया। ग्रीन या रेड? ग्रीन या रेड? रेड इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। व्हाई? क्योंकि पैसा 2 साल के बाद मुझे गारंटी चाहिए ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर उठा के डालूंगा, मैं किधर भी उल्टी सी जगह पे नहीं डालूंगा। वेरी गुड। तो जैसे भी आपने ग्रीन या रेड किया है, ऐसे आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स देखने हैं और सब कुछ आगे इसी तरीके से समझना है कि आप पहले अपने गोल को डिसाइड कर दो कि मेरा गोल क्या है, कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम के हिसाब से मेरा प्रोडक्ट कौन सा है। इंडिया में लोग उल्टा करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और फिर टाइम और उसके ऊपर जाते हैं। यू डोंट डू दिस मिस्टेक, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग व्हिच इज यू विल डेफिनेटली लव इट। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अभी हम देखेंगे गोल प्लानिंग का स्टेप जो है, उसके पहले के जो स्टेप्स हैं वो कैसे हम पूरे करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप है वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा कैश फ्लो क्या है, यानी मेरी मेरी इनकम कितनी है वर्सेस मेरे घर की हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब इनकम की बारी आ रही है तो मेरी इनकम कितनी है, और एक्सपेंडिचर की बारी आ रही है तो घर का कितना एक्सपेंडिचर है। क्योंकि जो इंसान को अपना एक्सपेंडिचर नहीं मालूम होता है घर का, तो उसको अपना कंट्रीब्यूशन नहीं समझता अपनी इनकम का, और ऑटोमेटिकली आप पैसा नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपके घर का पूरा एक्सपेंडिचर, एक दिन का कितना है, एक महीने का कितना है, 15 दिन का कितना है, 2 साल का कितना है, 4 साल का कितना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? परफेक्ट है आता गाइस? परफेक्ट है गाइस? समझ में आया? ना मैं आपको एक बहुत मस्त चीज बता रहा हूँ। जिंदगी में अगर आप कोई भी एक्सपेंस करो, इसके बाद आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो, क्या वो मैं मेरी फैमिली की नीड पे पैसा खर्च कर रहा हूँ, या मैं मेरे खुद के गोल पे खर्च कर रहा हूँ, या मैं मेरे एस्पिरेशन पे खर्च कर रहा हूँ। अगर आप पैसा अपने फैमिली की नीड पे खर्च कर रहे हो तब तक ठीक है। यू आर लायबल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल टू फुलफिल द नीड ऑफ योर फैमिली, बट यू आर नॉट लायबल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल द गोल एंड एस्पिरेशन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। इसका मतलब क्या है? क्योंकि नीड होती है वो घर की कॉमन होती है, बट गोल और एस्पिरेशन कॉमन नहीं होती है। फोन लेना है वो नीड है, आईफोन लेना है वो गोल है। तो अगर आप दूसरे का गोल पूरा करते जाओगे, इंडिया में ऐसे ही करते हैं, दूसरे का गोल पूरा करते करते खुद के नीड पे लोन उठा लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से समझ लो, आपके घर की जो जरूरतें हैं वो नीड है, लेकिन अगर आपके घर के, अगर आप अपने पेरेंट्स और बच्चों के गोल को पूरा करना शुरू कर दोगे, तो जैसे ही आप एक गोल पूरा करोगे, आपके सामने दूसरा गोल पूरा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। कम ऑन गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी ऑन दिस? लोग मुझे पूछते थे तो क्या हम पेरेंट की इच्छा पूरी नहीं करें? करो, लेकिन वही इच्छा पूरा करो जो आपको आपके नीड पे पहले सेटिस्फाई करे, तब जाके वो आगे करो। क्लियर है ना? परफेक्ट है आज तक? सेकंड चीज, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद पे आती है। वो जिम्मेदारी क्या होती है? यू नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम फॉर योरसेल्फ। अब इसका मतलब क्या है? आप जितने भी जन यहाँ पर बैठे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दवाई की जिम्मेदारी, आप अपने बीमारी की जिम्मेदारी किसी पे भी मत डालें। क्योंकि अगर आप बीमार होते हो
तो उसमें सबका पैसा, आपके घर वालों का पैसा, मम्मी डैडी का पैसा जा सकता है। तो इसलिए अपने आपको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। 8-10 हज़ार में आपको 8-10 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में जितने भी जन रह रहे हैं, एवरीबॉडी दे शुड हैव आइदर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, दोनों अलग अलग होता है। आप अपने एजेंट से पता कर सकते हो। तो आपके पास आपके पूरे फैमिली मेंबर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सैलरी पे डिपेंडेंट है, यानी इसका मतलब आप जो भी पैसा कमा रहे हो, अगर उनको कुछ भी हो गया तो आपकी सैलरी में से पैसा जा सकता है। वो जितने भी जन ऐसे जन आपके घर पे रह रहे हैं, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो आपका सारे का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। कितने जनों का पैसा कोरोना में पूरी वेल्थ इरोड हो गई थी, क्यों? क्योंकि दे डिडंट नो कि हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस। सो मैं आपको सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी, प्लीज प्लीज अपने पैसे को संभालो। और सबसे पहले ये 3 चीज करनी बहुत जरूरी है। अपने घर का कैश फ्लो बराबर मैनेज करो, हेल्थ इंश्योरेंस बराबर आपका खुद का लेके रखो। तीसरा, अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके डिपेंडेंट्स है, पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, काम वाली भाई हो, एनीबडी एवरीबडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगी। एक छोटी सी टिप, अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसको इंश्योरेंस मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे डायबिटीज हो गई या कुछ हो गया, तो भी बहुत कंपनी होती है जो देती है इंश्योरेंस। पर डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, यू कैन अप्रोच सम एनजीओ एंड एनजीओ कैन फंड योर डिजीज। तो प्लीज हिचकिचाना मत, बिंदास पैसा यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। Fourth is basically come your life insurance. Now let me tell you this. In India, the most missell product in India in finance is insurance. याद रखना, अगर आप इंश्योरेंस खरीद के आप करोड़पति नहीं बन सकते। Insurance is a combination of two words. IN for investment, insurance for assurance. You are not investing for your investment purpose. You are investing for assurance purpose. कोई भी आगे आपको कितना भी बोले कि लाइफ इंश्योरेंस में मैं करोड़पति बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, नहीं बना सकता। तो प्लीज लाइफ इंश्योरेंस में खाली एक ही पॉलिसी अच्छी होती है, जिसको कहते हैं टर्म पॉलिसी। प्रीमियम कम, कवरेज ज्यादा। अगेन रिपीटिंग, प्रीमियम कम होता है, कवरेज ज्यादा होता है। कि कल को उठ के अगर आप को कुछ पहले अपनी एज के पहले कुछ हो गया, तो आपका पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी स्पॉन्सर करती है, ताकि आप अपनी बाकी की फैमिली आपके जाने के बाद वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। तब अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपया है और अगर आपकी फैमिली को 12 लाख पे पूरा घर चलता है, तो 12 लाख के सामने आने वाले 10 साल का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मैं आपको इंश्योर करके दे दूंगा, मतलब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये फर्स्ट 4 स्टेप है, ये आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है गोल प्लानिंग, जो अभी ऑलरेडी हमने किया। फिर आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वो हमने उसके अंदर ही देखा। गोल प्लानिंग के साथ हम कैसे प्रोडक्ट के पास जाएंगे। एक बार हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया तो हर प्रोडक्ट का टैक्स अलग होता है। तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स 2 तरीके से होता है, एक आपके इनकम पे जो लगता है वो, और एक आपके प्रोडक्ट पे कैसा टैक्स है वो। और एक होता है स्टेट प्लानिंग, लास्ट वाला। स्टेट प्लानिंग का मतलब होता है कि आप इतना सब करने के बाद पूरा पैसा किसको छोड़ के जा रहे हैं। अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं, किसको छोड़ के जा रहे हैं, और छोड़ के भी जा रहे हैं तो क्या लिख के लिखा पड़ी क्या कर रहे हैं। सो वॉट एवर यू आर गिविंग इन राइटिंग इज कॉल्ड एज स्टेट प्लानिंग। Either will or sufficient planning, this is called financial planning process. So basically it comprises of 8 steps, and these are the 4 are the major steps, and then rest 5 6 are the progress step, and 7 and 8 are the transfer steps. Guys, everybody with me over here, are you learning something new? Are you learning something new today? Come on guys, in the chat box. Yes, are you learning something new guys? Great. Now let me take you to the right and another understanding. My goals. मैं जब भी किसी को पूछता हूँ ना आपके लाइफ के गोल्स क्या है, तो हमेशा मुझे पता है क्या बोलता है, पहला चालू ऐसे करना है, आई वांट टू डू बिजनेस। बिजनेस के बाद में लूंगा कार, कार के बाद में लूंगा होम, फिर मैं लूंगा वैकेशन, फिर मैं करूंगा शादी, फिर मैं करूंगा वैकेशन, फिर मैं करूंगा किड, चाइल्ड एजुकेशन, फिर करूंगा चाइल्ड मैरिज, देन वर्ल्ड टूर। सब ये ऐसे बोलते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसके अलावा भी एक ऐसा गोल है जो लाइफ में आने वाला है, चाहे आप कुछ भी करो आपकी लाइफ में आएगा आएगा। ये सबके लिए ना आपको लोन मिलता है, पर उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। वो गोल का नाम है रिटायरमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेक यू टू द वन अंडरस्टैंडिंग। रिटायरमेंट का मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। लोग बोलते हैं रिटायरमेंट का मतलब है द डे यू
स्टॉप वर्किंग, और दिस इज अधूरा डेफिनेशन. काम बंद करने को, एज अटेंड करने को रिटायरमेंट नहीं बोलते. रिटायरमेंट बोलते हैं द डे यू स्टॉप वर्किंग फॉर मनी, and that day onwards your money should work for you. If your money is not working for you and you are working for your money, that means you are not retired. रिटायरमेंट का मतलब होता है आप ये सोच लो कि आने वाली ये एज के बाद मैं मेरा पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा. मैं ऑफिस जाऊंगा बट मैं पगार के लिए नहीं जाऊंगा, अपने सुकून के लिए जाऊंगा. एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन बोथ आर रिटायर, राइट, बट दे हैव मनी विद देम. Their money works with them. So guys, you need to decide which age you want to have that kind of attainment. Now the next question comes, at which age you should plan the retirement? कोई बोलता है 60, 50, 40. No guys. The best age to plan retirement is the day you get offer letter. जिस दिन आपको जिंदगी का पहला ऑफर लेटर आता है, पहली इनकम आती है, उसके पहले आपको ये सब करना बहुत जरूरी है. अगर आपको कार लेनी है तो प्लान कब से करोगे? फर्स्ट ऑफर लेटर. वैकेशन जाना कब से करोगे? फर्स्ट ऑफर लेटर. मैरिज की प्लानिंग कब से करोगे? आपके पहले ऑफर लेटर. आपके चाइल्ड की मैरिज और एजुकेशन प्लानिंग कब से करोगे? पहले ऑफर लेटर. तो आपका पहला ऑफर लेटर से ही सारी प्लानिंग शुरू होगी और सबसे पहली होगी रिटायरमेंट की. मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, ये बात हमेशा याद रखना गाइस, जितने भी जन यहाँ पर बैठे. The day you attain the age of 40, 45, right? And you will always wanted आपके जो छोटे हैं, right? आपके यंगस्टर्स हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करें. Do you want or you don't want? Come on, answer me this question. You want your youngster to respect you or you don't want them to respect you? Come on. You want, right? Yes or no? Only answer me yes or no. Right? And you want your elder should also take you in their discussions. Right? And how will they do that? How will they do that? They will do only in one condition, when you have money with you. अगर आपके जेब में पैसा नहीं होगा ना 40-45 साल में, तो कोई आपको खड़ा भी नहीं करेगा. बच्चे आपको बोलेंगे पागल बना रहा है, बड़े बोलेंगे ये हमेशा ऐसे ही करता है. याद रखना, आपकी इज्जत, आपका जो बैरोमीटर होगा वो आपको पैसे से मापा जाएगा. और मैं आपको बता दूं, बंदा वही बकवास करता है, वही बोलता रहता है जिसके पास पैसा नहीं होता. और जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास बोलने के लिए टाइम भी नहीं होता. मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट टिप्स. पहली बात आपके लिए, यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सुमन. मैं आपको एक मस्त चीज बोल रहा हूँ, आपके लिए सब चीज पॉजिटिव है. अगर आपके फ्रेंड ने बोला वो खराब है तो वो जरूरी नहीं है आपके लिए खराब बंदा होगा. याद रखना, आपके लिए हर चीज पहले पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर आपके साथ कुछ खराब एक्सपीरियंस हुआ तो शेयर करो सामने वाले के साथ, ताकि वो आपके साथ एक रिलेशन कॉर्डियल बना के चले. इस दुनिया में अगर आप जितने लोगों के साथ बुराई करते जाओगे, आपको वापस कर्मा आपके साथ बुराई करेगा. आप जिनके साथ अच्छा करते जाओगे, पर इफ यू डू, मैंने बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, इफ यू डू एनीथिंग गुड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू डू एनीथिंग गुड विद एनी एक्सपेक्टेशन of 0.001% also, then that cannot be good. I'm again repeating. If you do any good with some expectation in your mind, that cannot be good. मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, यानी आप वो अच्छा ही नहीं रहेगा. इसीलिए मैं जितने भी जन यहाँ पर बैठे, मैं सबको बोलूंगा, रिटायरमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप वहां से बाहर नहीं आ सकते, बट आप पहुंचेंगे जरूर. अगर आपके पास पैसा होगा तो आप टिक सकते हो, नहीं होगा तो आपके बच्चे आपको ओल्ड एज होम में डाल देंगे. और याद रखना, इन्फ्लेशन इतने क्यों डालेंगे पता है? क्यों डालेंगे पता है ओल्ड एज होम में? वो बोलते सर नहीं होगा, ऐसा होगा, बहुत जल्द होगा. और वो क्यों होगा पहले वो समझना बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है. क्यों होगा पता है? उसका रीजन क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. वो इसलिए होगा क्योंकि बॉस, पॉइंट नंबर 1, आज की तारीख में अगर आपके घर का खर्चा 30,000 है तो आने वाले टाइम पे बढ़ के 80,000 महीना होगा. आपका बच्चा ये एक्सपेंस पहले तो पूरा नहीं करेगा. दूसरी बात, जो वैल्यू ऑफ रूपी है, जैसे 100 रुपए में पहले 4 लीटर पेट्रोल आता था, 100 रुपए में 1 लीटर भी नहीं आता. तो वैल्यू ऑफ 100 रुपए डिक्लाइन हो गई है. तो आपका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा. तो अगर आपने ओल्ड एज में, अगर आपके पास मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, दवाइयों पे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो आपका कोई भी बच्चा आपको घर पे नहीं रख सकता. इसीलिए आपको पावरफुल होना पड़ेगा. आपके रिटायरमेंट के लिए आपको जीना पड़ेगा. जितना पैसा बाहर उड़ाओगे उतने आपको रिटायरमेंट में बहुत तकलीफ आएगी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अग्री विद मी टिल नाउ इन दिस सेशन? अभी तक आपको लगा कि मैं आई एम टॉकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन, come on. How many of you agree with me on this? Agreed? Are you enjoying the session?
मजा आ रहा है आपको सेशन में? Are you enjoying the session? Great. Thank you. Let's go ahead. So what you will do to beat the inflation? You will start saving early. And you will not only save the money, you will go to the investment purpose. Right? Now, how will do that? Let's understand this. I've already discussed there are a lot of things which are there. Let's understand this. Right? Thank you for your response. Now, what you should see before you buy investment? First, whether my investment is safe or no. Second, whether my investment is liquidity. Liquidity मतलब मैं जब बटन दबाऊं तो मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए. Third, whatever money I am investing, I am expecting कि मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा. क्या मुझे वो रिटर्न मिल रहा है क्या? अगर मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहा है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ तो मैं रिटर्न देखूंगा. अगर मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ तो लिक्विडिटी देखूंगा. और मैं 1 to 5 में जा रहा हूँ तो मैं सेफ्टी देखूंगा. ठीक है? तो 3 things are there. परफेक्ट है, समझ में आया? फिर मैं कन्वीनियंस देखूंगा और फिर मैं टैक्सेबल देखूंगा. लोग क्या करते हैं पता है? पहले टैक्स को देखते हैं, लिक्विडिटी समझ में नहीं आती है उनको, रिटर्न समझ में नहीं आता और सेफ्टी भी समझ में नहीं आती. एक बात, अगर आप है ना एक बात समझ के चलो. अगेन दिस स्लाइड विल टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. सी दिस स्लाइड. अगर सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे ना ग्रोथ चाहिए या मुझे इनकम चाहिए, आप डिसाइड करो आपको प्रोडक्ट से ग्रोथ चाहिए या इनकम चाहिए. अगर इनकम चाहिए तो आपको शेयर्स इनकम नहीं देगी कभी भी रेगुलर. ग्रोथ चाहिए तो एफडी आपको ग्रोथ नहीं देगा, शेयर आपको ग्रोथ देगा और एफडी आपको इनकम देगी. तो ये डेट प्रोडक्ट हो गया, ये इक्विटी प्रोडक्ट हो गया. इंडिया में लोग क्या करते हैं? शेयर्स खरीदते और एक्सपेक्ट करते हैं मुझे इनकम मिलेगा. समझ रहे हो? आपकी प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन गलत है. अगर आप शेयर्स लेके ये सब सोचोगे तब वो कुछ होने वाला नहीं. तो इसीलिए पहले आप समझ लो आपकी प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले वो समझना. कोई भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में खराब नहीं होता, चाहे वो शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, प्रॉपर्टी हो, कोई खराब नहीं होता. प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब बाय करते हैं उसका पर्पस हमको पता नहीं होता है, तो आउटपुट ही मालूम नहीं है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. सपोज अगर भी आप एक ना क्रिकेट मैच खेल रहे हो, ठीक है? आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, अगर मैं बोलूँ आपको 20 ओवर डालने हैं, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट ये तो मालूम है मैं 20 ओवर तक कितने रन बना पाऊंगा, उतने में रन बनेंगे. मैं बोलूंगा आपके ओवर ही नहीं होगा, अनलिमिटेड ओवर्स, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मालूम ही नहीं होगा टारगेट क्या सेट करना है. इसीलिए जब तक आपका गोल सेट नहीं है या कुछ भी सेट नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ भागते रहोगे खाली. सो इफ यू प्ले अ फुटबॉल गेम, इमेजिन कि आप आंख बंद करके सोचो एक फुटबॉल का ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड पे 2 टीम फुटबॉल खेल रही है और इमेजिन करो उसमें गोल पोस्ट ही नहीं है. अब क्या होगा? वो बॉल किधर जाएगा? आजू बाजू ही जाएगा, किसको मारेंगे? तो बिना गोल के अगर फुटबॉल नहीं चल सकता, वैसे बिना गोल के आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं चल सकती. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको जितने भी हमारे घर वाले हैं उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि आगे चल के, पहले जमाना गया जब प्लानिंग ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट शायद हो सकता है करती रही. आज गवर्नमेंट के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स, उनके पास टाइम ही नहीं है. तो इसीलिए पहले एक बंदों के 8-8 10-10 बच्चे होते थे, आज 2 होते हैं, आज एक होता है, तो एक भी नहीं होता. अडॉप्ट करते क्यों? क्योंकि द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड. नाउ वन मोर थिंग, एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, बहुत लेमन लैंग्वेज में. कोई आपको पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और कितना रिटर्न मिलेगा, कोई भी पूछे तो बहुत सिंपल है. इन्वेस्टमेंट, आप बोलोगे ना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका पहला क्राइटेरिया क्या है पता है? कि आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा 5 साल के ऊपर होना चाहिए. यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप 3-4 साल पैसा निकाल दिया तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खाली पुटिंग द मनी हो गया. तो जो भी आप वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हो, पहले तो 5 साल के ऊपर के हॉरिजन का होना चाहिए. और दूसरा पॉइंट ये है कि वो हमेशा और हमेशा इन्फ्लेशन रेट के ऊपर होना चाहिए. यानी अगर आपका 6% इन्फ्लेशन है तो आपका जो रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 12% होना चाहिए. 6+6 गिनते हैं. अगर आपका रिटर्न 6% के नीचे है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है. यानी एग्जांपल, अगर आप 5 साल के ऊपर पैसा रख रहे हो, अगर आपने एफडी में पैसा रख दिया तो आप इन्फ्लेशन को कभी जिंदगी में बीट नहीं करोगे. इसीलिए कहते हैं कि आपके दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने बहुत जरूरी है. सो अगर ये लेमन लैंग्वेज है, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, बायो हो, फिजिक्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आपका बेस्ट रिटर्न क्या होगा? जो इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा. अगर आपका इन्फ्लेशन से कम रिटर्न है उस साल, मतलब आपका वो रिटर्न, आपका इन्वेस्टमेंट खराब है. याद रखना ये बात.
आई होप यू आई एम क्लियर द पॉइंट, राइट? समझ में आ गया सबको? एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? परफेक्ट है? यस। ये आपको एग्जांपल में बाद में समझाऊंगा। तो अभी हम म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे 10 मिनट। म्यूचुअल फंड होता क्या है? बेसिकली अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, वो एक व्हीकल है, बहुत सिंपल है। हम जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिसकी सोच कॉमन होती है, राइट? वो हम क्या करते हैं, हम उठा के पैसा किसको देते हैं? हम पैसा देते हैं एक बंदे को जिसका नाम है फंड मैनेजर, ठीक है? वो फंड मैनेजर क्या करता है? वो फंड मैनेजर पैसा क्या करता है? वो फंड मैनेजर फंड हाउस को पैसा देता है। वो फंड हाउस मैनेजर को पैसा देता है। ये पैसा वो सिक्योरिटी में लगाता है आपके गोल्ड के हिसाब से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के हिसाब से, और आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। तो क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब है शेयर मार्केट में पैसा लगाना? द आंसर इज नो। खाली आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते हो, आप बॉन्ड में लगाते हो, गवर्नमेंट में लगाते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाते हो, लिक्विड फंड में लगाते हो, मनी मार्केट में लगाते हो। जहां पर भी आप पहुंच नहीं पाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पर आप पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा सकते हो। समझ में आया? गाइस एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? परफेक्ट है? क्लियर है? यस, परफेक्ट। म्यूचुअल फंड क्यों बाय करना चाहिए? बहुत सिंपल है। एक तो प्रोफेशनली मैनेज होता है आज की तारीख में, हमसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उधर। प्लस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब अगर आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे तो मतलब आप 10-12 स्टॉक में एक साथ पैसा डालोगे। लेकिन अगर आप एक शेयर खरीदोगे तो आप वही शेयर, वही इंडस्ट्री, उसी स्पेसिफिक में खरीदोगे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में डिसडाइवर्सिफाई हो जाती है, आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव होता है, लिक्विडिटी होती है, और सबसे बड़ी बात जो मैं म्यूचुअल फंड में बिलीव करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। अब हुआ क्या था, हर्षद मेहता के केस पकड़ते। हर्षद मेहता ने जहां पर पैसा डाला था हमको मालूम ही नहीं, एफडी वालों ने कितने पैसे डाले थे पता नहीं हमको, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले पूरा डिस्क्लोज करते हैं। एक और एक बात, टैक्स का बेनिफिट तो मिलता ही है, रेगुलेटरी कंफर्म। मतलब म्यूचुअल फंड है ना, मेरे और आपका प्रोडक्ट नहीं है, या किसी बैंक ने नहीं बनाया, ये एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। अब मैं आपको रेगुलेशन के बारे में बताता हूँ, बहुत कम जन को पता है। इंडिया में बेसिकली पूरे रेगुलेशन में 5 रेगुलेटर्स है, 4 रेगुलेटर है और एक रेगुलेशन है। पहला, जो भी बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, बैंकिंग की चीज होती है, वो आरबीआई के अंडर आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ हो, वो आती है आईआरडीआई के अंदर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा, पेंशन, जितनी भी पेंशन होती है वो सब पीएफआरडीआई के अंदर आती है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, वो सब के सब आते हैं सेबी के अंडर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कल को के कोई भी फ्रॉड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हुआ, तो ये पर्टिकुलर बोर्ड आपको पर्टिकुलर रेगुलेटर बोलेगा। और रियल एस्टेट में एक रेगुलेशन है जिसका नाम है रेरा। रेरा फॉर रियल एस्टेट के लिए आता है रेरा। अभी रियल एस्टेट में वो रेगुलेशन नहीं है, बेसिकली इट इज नॉट अ रेगुलेशन, इट इज अ सॉरी, रेगुलेटर इज रेगुलेशन। तो कल कोर्ट के अगर आपने फ्लैट लिया, भी क्या होता था, लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते थे और अपनी प्रॉपर्टी टाइम पे नहीं मिलती, तो क्या होता था, आपका लॉस हो जाता था। तो बिल्डर को इंटरेस्ट में आपको पैसा देवे, ऐसा कुछ करे, इसीलिए ये रेरा होता है। तो मैं बोलूंगा, जैसे एग्जांपल, लंदन में खाली एक ही रेगुलेटर है, एफसी है, यूएस में एक ही है, एसईसी। वैसे ही पूरे इंडिया अगली कंट्रीज में 5 रेगुलेटर या रेगुलेशन है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सिक्योर है और इसलिए रेगुलेटरी कंफर्ट हमको मिलता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और मैं आपको एक और एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू, सबके लिए। या श्योर श्योर श्री, नो प्रॉब्लम। See, the reason why I asked you that the recording should be in English or Hindi, the reason is because the reason is very same, that everybody should understand that, okay, language as simple as we can go with this session, so people are able to understand. By the way, thank you, Srivas, for the feedback. Now let's understand this very, very, very minute thing. Suppose I want to invest in any business. So when you say you want to invest in shares, you are coming and telling me I want to invest in business. I cannot afford to take, I will not be able to make profit in 1 year, and nor expect that my company where I've invested, they will also make profit in 1 year. Hence, whenever you invest in shares, first of all, you need to give them some time. Third thing is, whenever they make profit, definitely over the period of time, when you give them time, your risk also get mitigated. Mitigate in the sense, what it happen is, it get reduced. So the more time you are, for the longer period of time you are there into the market, the more, higher return you get and more safe you are. But if you come with a panic situation, no, I want to remove the money, I want money for this, I don't have money, and suddenly you pick up the shares and sell it anytime, whenever you want to, then I'm sorry, the market is not for you. Let me tell you this very clearly. So it's for the different thing.
Now mutual fund has different structure. Closed means you can come and invest only once a time. Then you have open structure. What do you mean by open-ended? You can come and invest whenever you wish to, remove the money whenever you wish to. Interval you can come, but there will be a certain period of time and the this will be again open, that you can invest the money. So obviously close-ended, open-ended, and this is still there. But I've already explained you in the last slide, last few slides, that the entire mutual fund in the year 2017, SEBI told that don't create confusion for investors. To all the mutual fund companies in India, SEBI clearly told you should have only 5 structure. If you are more than 5 years, go with equity schemes. There are 12 equity schemes which are available, basically 11 hai, but sometimes it becomes 12 depending upon the company to company. So there are basically, I will say 11 equity schemes. Now let's take an example of 11 equity scheme. Example le raha hu. If you want to invest in top 100 companies, you say I'm investing in large cap companies. If you are investing in 100 to 250 companies, you say you are investing in mid cap companies. If you are investing in more than 250 ranking companies in mid cap, in capitalization, you say you are investing in small cap company. You come to me and say you want to invest in all the 3 categories. I say you are in multi cap companies. So this is how different investment portfolios are there. Now there are certain fund like contra fund. Contra is going against the market. If market is people are buying, you are selling. People are selling, you are buying. Then you have something called sectoral. This is a very excellent fund, but very risky and very high return also. Suppose you are betting on a EV sector, that you are telling me that, okay, I think that in the coming years, EV is going to be boom. So that's how you put only in the EV sector. But suddenly some government norms come into picture. So what will happen in that case? So what will happen in that case? So if government norms come automatically, as example in COVID, hotel industry was one of the most affected one, right? So there they're never able to make the money. Okay? So that's all is the thing. The only fund which give tax benefit in mutual fund, whether it is debt or equity schemes, it is called ELSS, equity linked saving schemes. Clear? Hai? Clear everyone? The only scheme which give you tax benefit is ELSS. Clear? Hai? Now you will come and ask me, sir, which fund I should buy. I will always tell you only one thing. This session is not that you should buy. This session is to basically make you aware that so many things are available on your plate. Understand yourself first. Know yourself where you want to go. Let's take an example. You say, I want to invest only for one day. So that scheme come into picture. You can invest for one day also, 91 days also, and there are a lot of things you have with you. Example, you will come and tell me, sir, I want to invest in only government security. Then guild fund is there. You want to invest only in banking and PSU debt fund, then this is there. So what I would like to tell you is basically what I want to tell you is very, very important part, that debt funds depend upon as long you go into debt funds, the return is less. That is for sure. Because the reason is in debt funds, what happens is you get very less money as compared to equity. And then you come with a hybrid mixture of equity and debt. So if you move towards equity, you say aggressive, more toward debt, conservative, and both the two is balanced. Right? Then your solution, if you only go for a retirement fund, then you have retirement fund, which is a 5 years lock-in period. You cannot remove money more before 5 years. And also some children fund is also there. You cannot remove money in less than 5 years. Apart from this, there are index fund. What are index fund? Very simple. Index means Sensex. So BSE, NSE has stock exchanges. There are 30-50 shares in that. BSE has 5,000 shares, but the index has been selected. So like India, we have population of 1.2 billion. But हमारे को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने वाले 11 जन होते हैं, तो 11 is our index. Similarly, Sensex is the index of 30 shares. So 30 shares is actually the LSK, what are they from different industry, from different sector they have been chosen. And what these people do? So this kind of fund is basically putting the money only in the Sensex shares. It is called index fund, it is called passive funds. So you don't require fund manager over here. So I've already explained you retirement, life insurance, equity oriented, and I've explained you all this. Now, before I wind up my session, I want to ask you, how many of you want to learn about the live goal planning, live goal planning process? How many of you want to learn the live goal planning process? Come on, hit the chat box. How many of you want to learn the live goal planning? How to do it?
Yes, you want to learn, everyone? So let's go for it. Now I want answer from everybody. Can you see my chat box? Can you see the screen, guys? Everyone, can you see the screen, my dear friends? Yes, let's go for it. Now I am going to solve the case study in front of you. Now your all the myth about the mutual fund or investment will go away today. Let's start. First, suppose I assume that your current age is 20 years. You are going to retire at 60 years of age. How many years do you have? 40 years. If you have 40 years in your hand to go for your goal to achieve of retirement, suppose आपका retirement का जो goal है उसके लिए 40 years in hand बचे, right? तो more than 5 years तो long term goal हो गया. अगर more than 5 years long term हुआ, so 40 years is very long term goal. और very long term goal मतलब क्या हो गया? The return will be anywhere between 15 to 20%. Assuming that we are going to get 18% return, let's assume the return expected return is 18%. So what you should do is you should take a return of at least 12 to 20% के बीच में लेना है. और अगर इतना ज्यादा रिटर्न है ना, मतलब इतना ईयर्स है, तो यू कैन टेक अ रिटर्न ऑफ 18%. सपोज यू से कि मैं बहुत गरीब हूँ, दुनिया का गरीब आदमी हूँ, आई एम वेरी पुअर, आई विल सेव ओनली 100 रुपीज फॉर माई रिटायरमेंट. So sir, on my retirement, how much money I have in my pocket? You will shocked to know that 85 lakhs. Now you can ask each and everybody, the old people, उनको ये पूछ सकते हो कि सर आप ऐसी नौकरी क्यों करते हो, आपके पास 100 रुपया भी नहीं था बचाने के लिए. अगर आपने 100 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास 85 लाख रुपीज होता. किसी के पास 8.5 लाख रुपया भी नहीं होगा. You come and tell me, sir, मैं 100 रुपीज क्यों बचाऊं, मैं 1000 रुपीज बचाऊंगा. Fantastic. If you say 1000 rupees today, how much money you will have on your retirement? It's 8.6 crores. Now you will come and tell me, sir, अगर सपोज मैं 18 years का हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, तो 2 साल अगर मैं पहले करता तो क्या होता? लेट्स अंडरस्टैंड. तो आपके पास 42 years होते. और अगर आपके पास 42 years होते तो क्या होता? आपके पास कितना पैसा जमा होता? 12.3 crores. आप मुझे पूछोगे सर, अगर यही चीज अगर मैं 20 के बदले अगर मैं 2 साल के बाद करूँ, तो अगर हमने 2 साल कम कर लिए तो कितना पैसा होगा आपके पास? 6 crores. We lose at least 2.5 crores. So I hope you got the difference, right? एक साल का ये डिफरेंस बहुत है. मैं आपको एक सिंपल बता दूं, अगर आप 20 के बदले 25 ईयर में चालू करते हो इन्वेस्टमेंट, तो यू आर लूजिंग ऑन 5 years. व्हाट इज द लॉस यू मेक इन 5 years? यू नो, फ्रॉम 8 crore यू विल हैव ओनली 3.5. मतलब अगर आप 35 years तक पैसा जमा करते हो, करेक्ट सर, ये मंथली इन्वेस्टमेंट है. मंथली 1000 मंथली है, मंथली 1000 बॉस, मंथली. Are you learning something new today, guys? I want to answer from everybody. Are you learning something new today? Can you see the live calculation? I am just doing in front of you all the calculations. I'm not doing anything. मैं आपको क्लियर आज पिक्चर बता रहा हूँ. करेक्ट. आप ये भी देखो, अगर आपने 35 के बदले अगर 5 साल एक्स्ट्रा भरा, तो 5 साल एक्स्ट्रा भरने का आपको बेनिफिट कितना मिलता है पता है? 21 करोड़. मतलब आपको कहने का मतलब है सर, अगर मैं 5 साल लेट करता हूँ, करेक्ट, 5 साल लेट करता हूँ तो मुझे खाली इतना मिलेगा. और 5 साल अगर मैं जल्दी, अगर मैं 15 साल में मेरे फादर से पैसे लेके इन्वेस्ट करता, जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है, अगर मैं उससे इन्वेस्ट करता तो मेरे को क्या 21 करोड़ मिलता था? आंसर इज यस. So it's very clear from this example, the more you are there in the market, the more you make the money. Now I will tell you what is the loss of, बोलते ना 1 रुपए की वैल्यू क्या है. आज से हमेशा याद रखना, अगर आप जिधर भी 1 रुपया खर्च कर रहे हो महीने का, यानी अगर आप किसी को 500 रुपए देते हो ना, ऐसे ही वेस्ट करते हो, तो समझ जाना आपके रिटायरमेंट का वो 85,000 रुपीज है. 500 की वैल्यू 85,000 होगी आपके रिटायरमेंट में. 1 रुपए की वैल्यू बता रहा हूं मैं. यही अगर आप 10 रुपया करते हो, तो 10 रुपए की जो वैल्यू होगी, मतलब 5,000 की वैल्यू होगी 8.5 लाख रुपए. यानी अगर आप इधर 5,000 रुपए खर्च करते हो, तो आप खुद को आज से बोलना कि मैं रिटायरमेंट का ये करता हूँ. मोहित, मैं आपको ये बता रहा हूँ, 18% रिटर्न, 110% मैं आपको बोल रहा हूँ. अगर आप 40 ईयर्स तक रहते हो, तो आप इतनी बड़ी लाइफ साइकिल देखोगे, नीचे ऊपर डाउन अप, इतनी बड़ी लाइफ साइकिल देखोगे, ऑन एन एवरेज आपको 15 to 20% के बीच में मिल ही जाएगा. और ये प्रूवन मार्केट है. पर फिर भी आप इधर 18% नहीं, आप इधर मिनिमम 12% से चालू करो. लेकिन चालू तो करो, 12 से चालू तो करो. अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं हिंट देता हूँ, अगर आपका पैसा 5 और 10 ईयर्स के बीच में है, तो आपको एनीवेयर बिटवीन रिटर्न 8 to 12% के बीच में रिटर्न आएगा ही आएगा. अगर आपका पैसा 10 to 15 ईयर्स के बीच में है,
तो आपको 10 से लेके 15 के बीच में आएगा ही आएगा। और अगर आपका पैसा 20 साल के ऊपर है तो आपको 15 से आप 12 से 20% के बीच में पकड़ो ही पकड़ो। क्यों? क्योंकि फिर आप डिपेंड करता है कौन से प्रोडक्ट में पैसा डाल रहे हो, आपकी क्या नॉलेज है, आप कैसे उसको फिलअप कर रहे हो। समझ में आया मोहित? आई एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यू जस्ट अंडरस्टैंड दी बेसिक, यू डोंट गो विद द परसेंटेज। आप एटीट्यूड पे जाओ, परसेंटेज पे मत जाओ कि क्या आप उतना कर रहे हो क्या। क्वेश्चन ये है। उल्टा अगर मोहित, अगर मैं बोलूंगा आपको 12% पे इसको सेव करना है, एग्जाम्पल अगर आप 12% पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका 8 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं होगा, खाली 1 करोड़ होगा। तो अगर 8 करोड़ की तो आपको महीने का फिर 10,000 रुपए सेव करना पड़ेगा। इसका मतलब आप प्रोडक्ट ही रॉन्ग सिलेक्ट कर रहे हो। अब मैं मोहित, आपने अच्छा पॉइंट इधर रेस किया। सपोज अगर कोई बंदा एफडी में पैसा डालता है तो एफडी का रिटर्न 6% के ऊपर आएगा ही नहीं। अगर वो 6%, अगर 6% के हिसाब से खाली 1,000 रुपए में पैसा डालता है तो कितना रिटर्न आएगा उसको? 20 लाख। और यही वो बंदा अगर सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता है इक्विटी में या मार्केट्स में, उसको मालूम है लॉन्ग टर्म है, वो कहाँ 20 लाख और कहाँ 8.5 करोड़। ये डिफरेंस है नॉलेज का कि बॉस मुझे पैसा कब चाहिए उस पर डिपेंड होगा। समझ में आया? नाउ लेट्स गो विद द सेकंड एग्जांपल। गाइस आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर, राइट? परफेक्ट है। आप चालू करो। मैं कहता हूँ आपको 12% रिटर्न है, 8% है, 20% है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप चालू करो। चालू नहीं करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये चीज देखो। एक बंदे ने 10,000 रुपया डाला, ठीक है, और उसने डाला खाली 25 साल तक, उसको रिटर्न आया 5.8 करोड़। एक बंदे ने 20,000 डाला, डबल, लेकिन खाली 15 साल तक डाला, डबल डाल दिया उसका। इसने टोटल 30 लाख इन्वेस्ट किया और इसने इन्वेस्ट किया 36 लाख। पर उसको आया कितना और इसको कितना आया देखो। ज्यादा डाल के भी कम रिटर्न आया। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में कम टाइम के लिए था। तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने 30,000 डाला, ट्रिपल, लेकिन मार्केट में वो इतने टाइम के लिए था। कितना रिटर्न आया? फिर भी बीट नहीं किया। देखो गाइस, आर यू गेटिंग द पॉइंट? और कोई बंदा बहुत अच्छा था, उसने बोला मैं 75,000 इन्वेस्ट करता हूँ पर मंथ 5 साल के लिए। तो लेट्स सी उसको कितना आया। कितना आएगा? क्यों यहाँ पर अमाउंट, सॉरी ये गलत मैंने दिया, 70 नहीं, 7.5 लाख है, माई मिस्टेक। ये देखो, पहुंचा ही नहीं, खाली 73 लाख पे पहुंचा। तो मेरे को बताओ 75,000 इंपॉर्टेंट है या मैं 500 रुपया भी डालू ना 40 साल के लिए, तो भी मैं 4.5 करोड़ रुपए बना ले। समझ में आया आपको गाइस ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग? अब मैं आपको एक बहुत बड़ा गेम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। समझ आपके 20 ईयर्स है, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपकी शादी हो गई, किड बॉर्न हो जाएगा। किड बड़े होते होते 20 ईयर्स का हो जाए, 20 ईयर्स में अडल्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसकी भी शादी नेक्स्ट 10 ईयर्स में हो जाएगी। यानी आपके ऑफर लेटर लगने से लेकर आपके बच्चे की शादी तक आपके पास 40 ईयर्स है। अब आप क्या करते हो? आप अपने बच्चे के लिए खाली 250 रुपया आपकी शादी के लिए जमा करते हो, 250 रुपया, नॉट मोर देन दैट। और आप कैलकुलेट करते हो तो अगर आप महीने का 250 रुपये भी बचा रहे हो ना, आपके बच्चे की शादी तक आपके पास 2 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। और आप बोलोगे मैं बच्चा ही नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, तो 2 करोड़ ही आपका पड़ा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मुझे ये नहीं समझता लोग शादी के लिए लोन क्यों लेते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही मालूम है कि आपका बच्चा होने वाला है या शादी होगी या ऐसा कुछ होगा, आप स्टार्टिंग से ही बच्चे को पैसा सेव कर सकते हो। बच्चे की एजुकेशन है, आप बच्चे की एजुकेशन के लिए 750 रुपये डालो, और अगर वो, और इसमें से 10 साल माइनस कर दो, तो भी आप अपने बच्चे की एजुकेशन पे कम से कम मिनिमम यू कैन सेव एटलीस्ट 1.1 करोड़। तो आपको जो भी बच्चे का खर्चा करना है आप वो मिनिमम इतने से कर सकते हो। तो ये बात भूल जाओ कि अभी तक आपने क्या किया बताए। 750 आपके बच्चे की एजुकेशन का, 250 रुपया उसकी शादी का, 1,000 रुपया आपके रिटायरमेंट का, टोटल मिलके भी आपने 2,000 रुपया अपने पे नहीं लगाया। मैं बोलता हूँ अगर आप अपने पे 8 से 10 हज़ार रुपया लगाओगे ना, आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। आपको कोई गोल के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको लास्ट गोल के बारे में बताता हूँ। सपोज आपकी 20 ईयर्स है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपका किड बॉर्न होगा, 20 ईयर्स में वो अडल्ट हुआ और वो भी रिटायर 40 ईयर्स में हुआ, मतलब उसके 20 से 40 वो भी रिटायर हो गया 60 में। हाउ मेनी ईयर्स ही हैज इन हिज हैंड? 70। यानी आपका ऑफर लेटर लगने से लेके उसके रिटायरमेंट तक उसके पास 70 ईयर्स इन हैंड है। अभी आपको नहीं पता, आप कभी आपको कुछ आप नहीं हो जाए, आप नहीं अवेलेबल रहोगे, आप मर गए, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड, यू आर नॉट देयर इन लाइफ,
So what you tell your child? So once you become big and start earning, you say, hey child, listen, I have saved 100 rupees for your retirement. When you get retired, only calculate the button and get the amount in your pocket. But you cannot take the money out until I am alive. And I will definitely tell you to, if I die in between, you can just keep on investing the money. वो पहले आप पे हंसेगा, he will laugh on you. कि 100 रुपीज से क्या होता है? बोलते बेटा बटन तो दबा, फिर पता चलेगा. जैसे ही वो बटन दबाएगा, उसकी आंखें फटी रह जाएंगी. बॉस, he will blow his eyes. 182 crores. And by chance, if you invest 1,000 rupees for your child retirement, he will be the owner of 1,800 crores of asset of yours. And God forbidden, if anything happens to the market, worst come worst, you will leave the wealth of 43 crore for your child. Ask your father once whether he has left this much money for you in the whole lifetime or not. That's what I want to tell you. Your child cannot plan your retirement, but you can plan your child retirement with the 7 generations coming along. It depends upon you how you save the money. I would like to conclude my session by telling you this come with habit, this come with patience, and this come with right education and guidance. I hope you enjoyed the session. I hope you really thank you for a nice audience, and I hope my calculations must have opened your eyes. Don't think to get 18%, 20%, 24%, and don't run behind here and there. My say to all of you is only one, that please first learn yourself who you are and then you enter into the investment part. So I'm going to stop over here.